So, Aufgabe C, Aufgabe 4a und 4b haben wir gestern gemacht. Ja? So, heute machen wir Aufgabe C weiter. So, lesen Sie die Regel und markieren Sie in 4b alle Artikelwörter, die als Pronomen verwendet werden. Welche Pronomen haben eine andere Endung als das entsprechende Artikelwort? So C, Artikelwörter als Pronomen. So there, das, die and die. So you can use in nominative eine, das, meins, die, eine, keine und die, welche. Okay, so you have to go through with 4b and you have to find the pronomen, Artikelwörter als Pronomen here in the text. Clear? See here. सर Yes, please. सो ये ग्रामर टॉपिक आपने पहले कराया था क्या? मैंने मिस कर दिया। नहीं, अभी नहीं कराया. We are learning right now. ओके। This one now we didn't learn it. We are doing right now. Okay. So you have to find the Artikelwörter als Pronomen here in this. You look. I show you. Wait. Look here. You have to underline this. For plural, welche, eine, keine. For nominative, masculine. See? Neutral, meins. Feminine, eine, keinen, keins. These are the Artikelwörter for pronomen. So highlight them in the text. सर आप इसको भी डिटेल में भी कराओगे क्या? अभी करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ना. ओके। नीचे सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, we have to use them. Here we are newer identifying them, right? So welche is for interessante Leute. Here, see, lebt ihr lieber in der Stadt oder seid ihr Landmensch? So Landmenschen, was ist für euch wichtig? Ich studiere in einer Großstadt und kann mir kein anderes Leben vorstellen. Interessante Leute, hier trifft man immer welche. So welche ist für interessante Leute? Plural. Clear? See here what we have done in the. So die is for welche. We are using welche für die. Plural. Interessante Leute. Leute is plural. We can use die, but we are using welche. So this is pronomen. We are using pronomen. We are using Artikelwörter as pronomen, you can say. So see here. Ich brauche diese Inspiration. Hier ist Tag und Nacht etwas los. Irgendein tolles Konzert oder Kulturfest kann man immer besuchen. Wie ist das bei euch? Hier. Clear? Next. Look. Landmensch anscheinend bin ich einer. I am the one. ठीक है? तो einer किसके लिए आ रहा है? There के लिए.
इसके लिए आ रहा है एक तरह से, आई एम द वन, ओके, क्योंकि दिस इज नॉमिनेटिव। सो सी नॉमिनेटिव पे मैंने देयर के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, आइनर, राइट। Ich wohne und arbeite zwar in der Stadt, aber mir ist es hier eigentlich immer zu laut und stressig. Am Wochenende fahre ich immer aufs Land an irgendeinen einsamen See zum Baden oder in den Wald. Dort ist auch keiner. So same, see, nominative case, but there is no one there mich stört. There is no one who can disturbs me. Und ich kann die Ruhe genießen. I can enjoy the calmness, you can say, the silence, Ruhe. Clear? Got it or not? So this is the pronomen we are using here. Zati. Ich möchte nicht in der Stadt wohnen, ein schönes Haus mit Garten und ich kann sagen, das ist meins. This is mir, mein. Meins bedeutet mein in English, ja? Das konnte ich mir. So this is for the house. Ein schönes Haus mit Garten. So mine says this is my house, for example. This is for neutral. Das könnte ich mir in der Stadt gar nicht leisten. I cannot afford it in a city. Überhaupt kostet in der Stadt alles mehr. So generally for example, it costs in the city a lot more. Und in irgendeiner kleinen Wohnung im Zentrum möchte ich auch nicht leben. Und in a small apartment I cannot live in the center. Sicher hat die Stadt auch Vorteile. Of course, there's advantages. Aber ich bleibe lieber in meinem kleinen gemütlichen Dorf. But I would like to live in my small but cozy village. Hier sprechen viele Leute noch Dialekt. Der kennt jeden und wir helfen uns gegenseitig. Means they speak the dialect and everyone knows everyone. Und wir helfen uns gegenseitig and we help each other. Clear? Kleine Wohnung im Zentrum, genauso eine habe ich. So here is eine for the Wohnung. See? Finde es toll, ich wohne mitten in der Stadt und ich kenne meine Nachbarn natürlich auch. Trotzdem kann ich hier leben, wie ich will. Das geht in einem Dorf eindeutig nicht, was ich mache oder nicht. Das geht keinen etwas an. So keinen ist for someone. Außerdem braucht man auf dem Land ein Auto. Hier in der Stadt brauche ich keins. I don't need anything. I don't need any for cars. Keins is for cars here. Because car is neutral. Meins, keins, deins. We have to use like this. Okay? Ich kann alles mit dem Rad erreichen. I can reach by a bicycle, you can say. So got it? How we are using them? हाँ जी बताओ. हाँ जी, got it or not this idea? Now we have to use. Okay. Now arbeiten Sie zu zweit. Ergänzen Sie die Pronomen und lesen die Gespräche laut. So hier gibt es hier in der Nähe eine Bank. Tut mir leid. Hier gibt es. What you can write? Einer. No. Keine. See here. Shruti, look. Feminine. Yes, sir. Eine oder keine. Because you are denying. Yes, Right? sir. Yes. Okay. Palash, did you get it or not? सो केसेस वाली चीज समझ नहीं आई इसके अंदर कैसे यूज होगा. देखो यहाँ पे आईने बैंक आ रहा है. यस सर. पास में कोई बैंक है क्या? वो क्या टुट मी लाइट हियर गिफ्ट इज नो बैंक. तो नो बैंक किसके लिए आएगा? काइने लिखना पड़ेगा ना. हियर गिफ्ट इज काइने. तो वी आर रिप्लेसिंग दिस आर्टिकल वेटर इनटू प्रोनोमेन. सो वी आर जस्ट यूजिंग काइने. हियर गिफ्ट इज काइने. देयर इज नो बैंक फॉर एग्जांपल. देयर इज नो बैंक. सो हियर गिफ्ट इज काइने ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को. राइट? ओके सर. अकॉर्डिंग टू दिस. देखो हियर
ओके, अगला देखो सेकंड, वो finde ich eine Post gleich da Rüben ist, what will come? eine, क्योंकि पोस्ट की बात हो रही है। लुक, वेट, आपको शो करता हूं एक बार, रुको, यहां पे देखो, समझ में आएगा आपको, एक सेकंड रुको, देखो आया नहीं आया, तो ये पोस्ट के लिए आ रहा है, देखो eine, in welchem park kann man gut joggen, in which park one can jogging कर सकते हो आप ना। तो अब यहां पे पार्क के लिए आ रहा है, देखो एस गिफ्ट nur einen, देन स्टार्ट गार्डन, सिटी गार्डन जो है वहां पे वो है वहां पे, तो ये einen किसके लिए आ रहा है यहां पे, इस पार्क के लिए। देखो अक्यूजेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो उस पार्क यस के लिए सर। हमने क्या यूज कर दिया, प्रोनोमेन, यहां पे एज ए प्रोनोमेन यूज कर रहे हैं इसको अपन। आया समझ में नहीं आया? यहां पे देखो फोर्थ में, गिफ्ट एस हियर इन फियटल ein schwimmbad, स्विमबार्ड की बात हो रही है, देखो तो नोइट्राल में क्या लिख सकते हो, काइंस लिखना पड़ेगा हमें। देखो नोइट्राल में क्या लिखा था हमने, काइंस, दाइन हाउस की जगह स्विमबार्ड आ रहा है वहां पे, तो स्विमबार्ड के लिए क्या लिखेंगे, देयर इज नो, है तो देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्विमबार्ड, तो उसके लिए देयर इज नो स्विमबार्ड, कुछ लिख, उसको हम प्रोनोमेन में क्या लिख सकते हैं, काइंस। ऐसे देखो वो गिफ्ट एस गेशेफ्ट für Sportsachen, तो देखो Sportsachen प्लूरल है, इन सेंट्रम गिफ्ट एस नेचुरलिस वेल्चे, वेल्चे किसके लिए आ रहा है, Sportsachen के लिए, या सॉरी यहां पे गिशेफ्टे के लिए आ रहा है, सॉरी, मतलब वेयर आर द शॉप्स फॉर द स्पोर्ट थिंग्स, तो im Zentrum gibt es natürlich welche, welche मतलब Geschäfte, Geschäfte की बात हो रही है, there are a lot। ये आइडिया आया कि समझ में नहीं आया, बताओ। हाँ जी, सर वेल्श का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है सर यहाँ पे? यहां पे दोज के लिए आ रहा है, नहीं गिफ्ट सर, एस, वो तो पता चला, मतलब जब वो प्लूरल में आता है उसलिए आ रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब वही है कि हिंदी में जैसे कह रहा हूं कि दुकानें, मतलब मुझे स्पोर्ट की चीजें खरीदनी है, राइट, तो दुकानें कहां मिलेंगी, तो मैं कह रहा हूं कि सेंट्रम में बहुत सारी दुकानें हैं, तो उन दुकानों के लिए हम वेल से यूज कर रहे हैं, इन द सेंटर देयर आर ओके। ऑफ कोर्स सो मेनी, ये मतलब हुआ यहां पे, तो उस गिशफ्टे के लिए वेल से यूज कर दिया हमने प्रोनोमेन का, उसका मीनिंग वही है, देयर आर सो मेनी, ये सेंस कर रहा है यहां पे, है ना। यस सर। अब बताओ और प्रैक्टिस करें किसकी, इसके एग्जांपल दे रखे होंगे 100% वहां पे ना। रुको मैं वो निकालता हूं एक बार आइडिया, वेट वेट ए सेकंड, शायद कम समझ में आया आप लोगों के, एक सेकंड रुको, प्रैक्टिस कर देते हैं एक बार, रुको। फियर है ना, फियर का डे, राइट, और ये देखो मैं यूबुंग बुक खोल रहा हूं एक बार, है ना, वहां पे एक्सरसाइज दे रखी होंगी 100%, वो निकालते हैं, चैप्टर 11 यूबुंग, देखो यहां पे निकालते हैं इसकी, देखो यहां पे रहा, ओके, नाउ ट्राई इट, देखो ये रहा, यही तो है, यही तो यूज करे थे हम लोगों ने, राइट। अब कोशिश करके देखो, आइंस, स्वाई, द्राई, फियर, फुनफ, जेक्स, आपका ये निकाल लो, यूबुंग बुक में दे रखा है ये, है ना, यूबुंग बुक ओपन करो और वहां पे इनको भरने की कोशिश करो, क्या आएगा, फिर साथ में करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देता हूं, है ना।
कोशिश करो भरने की, है ना। पलाश, समझ में आया नहीं आया? सर उसका जो थर्ड सेंटेंस था, लाइक जो आपने बुक से खोला था उस एक्सरसाइज का, उसके अंदर एक्यूजेटिव में क्यों था पार्क? क्योंकि पार्क तो अक्यूजिटिव है ना वहां पे उस सेंटेंस में। सो इन वेल्चम डाटिव नहीं हुआ क्या? क्या चीज? सेंटेंस में तो ये था ना कि इन वेल्चम पार्क, तो वो डाटिव नहीं होता क्या? नहीं, वो तो क्वेश्चन पूछा कि इन विच पार्क। देखो एक मिनट देना, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन क्या था, पढ़ते हैं एक बार। देखो वहां पे था इन वेल्शम पार्क कान मन गुड जोगन। तो मैं आंसर क्या दे रहा हूं, जो मेरा आंसर है मैं कह रहा हूं एस गिफ्ट नुअर आइनन पार्क, ऐसे बोल सकता हूं ना, देयर इज ओनली वन पार्क। तो वन पार्क, तो वहां पे आइनन पार्क तो अक्यूजिटिव ही आ रहा है ना, तो मुझे अक्यूजिटिव ही लिखना पड़ेगा ना भाई। एस गिफ्ट जो तो वर्ब है। क्वेश्चन में डाटिव में था, हम्म। तो वो डाटिव और में तो हमारे मेरे, सेंटेंस में एक्यूजेटिव। वो हमने उसका आंसर देने का तरीका चेंज किया उसमें, इसलिए है ना। तो आप जैसे कह सकते हो कि इन वेल्चम पार्क, तो इन नाहरगढ़ पार्क फॉर एग्जाम्पल, नाम देना पड़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल, राइट। इन द सिटी पार्क, इन वेल्चम पार्क मींस इन द सिटी पार्क, नाम देना पड़ेगा, विच की बात हो रही है वहां पे ना। लेकिन हम जवाब क्या दे रहे हैं, एस गिफ्ट आइनन पार्क, नूर आइनन पार्क, देन स्टार्ट गार्डन, नाम दे दिया उसका, देखो देन स्टार्ट गार्डन, स्टार्ट गार्डन सॉरी। तो जो आइनन पार्क तो अक्यूजिटिव हुआ ना, तो उसकी जगह फिर अक्यूजिटिव ही लिखेंगे ना। देन की जगह देखो, देन हुआ ना वहां पे, वो आइनन क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि अक्यूजिटिव है, तो उसकी जगह हम आइनन ही लिखेंगे ना। क्योंकि जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा ना हमें। ओके सो तो अब यहाँ पे कोशिश करो एक बार, इसीलिए मैं ना ये एक्सरसाइज करा रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए, है ना। कोशिश करो एक बार करने की, फिर साथ में करते हैं। अब बताओ फर्स्ट में क्या आएगा। वो जिंदी अंदरन स्टूडेंटन, वरुण इस नॉक, क्या आएगा कहीं नहीं बताओ। आएगा क्या सर? दी अंदरन स्टूडेंटन आ रहा है, यस सर, कहीं नहीं आएगा क्या? या काई नहीं आना चाहिए ना। यस सर। वरुण इससे नॉक काई ने दा, कोई भी क्यों नहीं है वहां पे, देखो रीजन। तो अब प्लूरल के लिए तो क्या आएगा, काई नहीं आएगा। क्लियर? ओके, अगला सेकंड में क्या आना चाहिए। सर आइनन आएगा। Morgen kaufe ich einen neuen Computer. Was? Du hast doch est. अब देखो क्या आएगा, आइनन। आइनन, आइनन आएगा। देखो प्लस, देखो आइनन क्यों आएगा बताओ, क्योंकि इसको रिप्लेस सो कर रहे हो आप, एक्यूजेटिव, हाँ। अक्यूजिटिव है इसलिए ना। जो सेंटेंस का जो जो आपकी जो आर्टिकल है ना, उन वो जो आपके आर्टिकल वर्टर है उनको आप एज ए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं यहां पे हम ना। प्रोनाउन समझते हो, इश, मिश, मी और डू, डिस्टी, ऐसे यूज कर रहे हैं उनको। ठीक है, जो आपके आर्टिकल है ना, देयर डी दास, देन डी दास, आइन आइने आइन, उनकी जगह ऐसे यूज कर रहे हैं अपन इनको। ठीक है, तो आइनन नॉइन कंप्यूटर जगह आइनन लिख सकते हैं ना। ओके, थर्ड में क्या आएगा। थर्ड में वेल्श आएगा क्या सर? वेल से आएगा, राइट, वेल से आएगा, है ना, क्योंकि टी शर्ट्स की बात हो रही है, प्लूरल है। मतलब वेल से किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, वाइस से टी शर्ट्स की बात कर रहा है वो, देयर आर मैनी, है ना।
फॉर एग्जाम्पल। फोर्थ में क्या आएगा? बताओ, कोशिश करो। Yes, brauche ich nur noch einen Parkplatz. Schau mal da links, da ist einer, क्योंकि पार्किंग प्लेस की बात हो रही है और नॉमिनेटिव केस हो गया। देयर इज वन, भाई पार्किंग प्लेस सर्च कर रहे हो तो देयर इज वन, लेफ्ट में देखो वहां पे एक पार्किंग प्लेस खाली है, तो आइनर आएगा यहां पे, राइट? प्रमोद यस भाई सर। समझ रहे हो? पलाश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। यस सर। ओके, 5 में बताओ, 5 में इस Suche eine Bäckerei, gibt es हम्म आई gibt नो। es eine in der आई Nähe? नो। कोई एक बेकरी है क्या भाई पास में? वो के 9 हियर इज काइनो। काइने, काइने है ना, आईने और काइने हो जाएगा। देयर इज नो वन। ओके, 6, haben Sie ein Buch über Zürich? Im Regal sehe ich काइने, क्यों काइंस? आई डोंट सी एनीथिंग, काइंस आएगा भाई, क्योंकि बुक की बात हो रही है, नोइत्राल की बात हो रही है, तो काइंस आएगा। देखो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। प्रमोद भाई समझ में आया कि नहीं आया? लो चेक करो। डन? और किसी को डाउट हो उसमें बताओ यहां तक। चलें फिर आगे, हटा दूं? बताओ यस भाई। सर। बंद करनी पड़ेगी बुक वापस से ना। तो यहां पे देखो, इर्गेन दाइन आइन वेल्श, देखो ये इनको कैसे बढ़ते हैं। als आर्टिकल वॉट, सिंगुलर फॉर्म वी आइन और आइन, wir finden irgendein Kaffee, plural formen mit welche, gibt es hier irgendwelche Cafés? देखो इर्गेन के साथ यूज कर सकते, इर्गेन दाइन, इर्गेन आइने, इर्गेन वेल्च, ये टर्म है यूज करने की ना। तो आल्स प्रोनोमेन हम इनको यूज कर सकते हैं, देखो ये चीज बता रहा है यहाँ पे ना। जिंगुलर फॉर्मन वी आइने, आइने से आइन और आइने यूज करते हैं ना, कि वो फिंडे इश, वो वी फिंडन ए कैफेटेरिया, तो इर्गेंड दाइन काफे, ये बोलने का तरीका है। प्लूरल फॉर्म में मैं क्या लिखेंगे? इर्गेंड वेल्च, देखो इर्गेंडाइन का मतलब होता है एनी, लिख दो मीनिंग। इर्गेंडाइन का मतलब क्या होता है? एनी। और इर्गेंडवेल से क्या हो गया? मैनी, एक तरह से ना, मैनी। प्लूरल के लिए हम इर्गेंडवेल से यूज करेंगे, देखो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कैफेटेरिया सिंगुलर है, नोइट्रल के लिए इर्गेंडाइन और प्लूरल के लिए इर्गेंडवेल से। अब देखो आल्स प्रोनोमेन कैसे यूज करेंगे? फॉर्मन वी आइने, आइने आल्स प्रोनोमेन, काफे वी आर फिरवेन इर्गेंडाइंस, तो कैफेटेरिया की बात हो रही है तो वहां पे दाइन का दाइंस यूज किया था हमने, राइट?
तो इरगेंडाइन की जगह क्या लिख सकते हैं, इरगेंडाइंस लिख सकते हैं ना। तो वी फाइंड ए यूज करना चाह रहे हो ना आप, वी फाइंड ए कैफेटेरिया, तो उस पूरे कैफेटेरिया की जगह हमने इरगेंडाइंस लिख दिया उसको, जैसे वहां पे लिखा था ना टी शर्ट्स के लिए एस एस गिफ्ट काइंस, वो फॉर्म आएगी यहां पे। जैसे देखो यहां पे कांस डू मियर इरगेंडाइन गुटेस्ट रेस्टोरेंट एम फिलन, कि कैन यू रिकमेंड मी ए, या कैन यू रिकमेंड मी एनी गुड रेस्टोरेंट, ऐसे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। तो या क्लार देयर मार्क्स होफ स्टॉल, तो यहां पे नाम दे दिया आपने, एनी गुड रेस्टोरेंट की जगह हमने उसका नाम लिख दिया, या क्लार देयर मार्क्स होफ इट टॉल। तो इसकी एक्सरसाइज दे रखी है आपको वहां पे शीट में, देखना भाई, अभी जो हमने करी थी ना एक्सरसाइज, उसमें दे रखी है इसकी, तो वहां से कर सकते हो आप इसको अच्छे से। मिला कि नहीं मिला, अगला वाला देखो, मुझे मुझे देख बार, इरगेंड वेल्च वाला दे रखा होगा ना, हाँ ये रहा, नहीं ये तो वो है, ये 5 फिल्म में होगा ना, ये 5 नंबर में देखो, ये रहा आपकी एक्सरसाइज है ना, उसमें 5 नंबर देखो, पेज नंबर तो डिफरेंट होगा आपके, लेकिन 5 में देखो फुन पे दे रखा है सारा, वहां से कर लेना ये, इरगेंडाइन इरगेंडाइने इरगेंड वेल्च। हाँ जी बताओ, समझ में आया कि नहीं है, 5 5 नंबर में करना, समझ में नहीं आया तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में इसको ना। चले फिर आगे, ओके, व्हेन द स्टट एरवाक्ट, एरवाक्ट क्या होता है, हाँ जी एरवाकन वर्ब है मित्रों, एरवाकन टू अवेक, जब एक सिटी जगता है, क्या होता है सिटी में पता है आपको, जब एक सिटी जगता है तो चीजें कैसे होती हैं ठीक, पेट्रोल पंप खुलते हैं, सब्जी वाले सब्जी लेने जाते हैं, दूध वाले दूध लेने जाते हैं, शॉप वाले दुकान साफ करते हैं, चीजों को सेट करते हैं, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डालता है घर पे, हैं, लोग वॉक करने निकलते हैं, है ना, कितनी सारी एक्टिविटी होती है, हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल जा रहे हैं, एयरपोर्ट वाले एयरपोर्ट जा रहे हैं, जिसको ट्रेवलिंग करनी है वो कोई बस से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, सिटी कैसे जगता है देखो कभी इसकी एक्टिविटी आप, सफाई वाले रोड साफ कर रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं कचरा उठा के ले जा रहे हैं मान लो, ये चीज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, फूल माला वाले फूल लेके आ रहे हैं लोग, पूजा के लिए फूल खरीदने जा रहे हैं, मंदिर, घंटी बजने लग जाती है मंदिरों की, सुबह आरती हो रही है, कुछ हो रहा है तो, है ना, मॉस्क में वो पीरियड अलग होती है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो एक सिटी कैसे जागता है, तो देखो मॉर्गन्स फुन्फ, सुबह 5 बजे, wer arbeitet schon diese Zeit, who works already around this time, oder immer noch, ja always, still, where is sonst noch unterwegs, who is on the way, इस टाइम पे स्पेशल नियम कोड, सुबह 5 बजे की बात हो रही है, तो क्या देखते हो आप, देखो अगर आप लेट जगने वाले हो तो सुबह का माहौल देखो कैसा रहता है सिटी में सुबह का ना। तो lesen Sie den Magazin at Bericht, welche Personen machen was am frühen Morgen, मतलब कौन से लोग क्या करते हैं अर्ली मॉर्निंग, ये वाली बात हो रही है, तो उसको रीड करेंगे अपन पूरा, है ना। तो मॉर्गन्स फुन्फ, मॉर्निंग में 5 बजे, राइट, तो कौन रीड करेगा, एक मिनट रुको। प्रमोद रीड कर भाई। Morgens am 5 Uhr im allgemeinen Krankenhaus, allgemeinen allgemeinen हम्म Krankenhaus äh, Pfleger Ferdi Seigler ist seit äh, 21 Uhr im Dienst. Noch eine Stunde, bis die Kollegen von der äh, Frühschicht kommen. Die Nacht war wie so oft unruhig.
zwei Patienten hatten Probleme. Einer hatte nach einer Operation polizeilich hohes Fieber. Ein anderer hat mich dieser 10-mal gerufen. Und in der Nacht gab es in der Innenstadt einen schweren Unfall und mehrere Verletzte wurden eingeliefert. Also ein ganz normaler Nachtdienst. Ferdi beginnt jetzt alles für die Übergabe vorzubereiten. Um 7 Uhr ist seine Schicht zu Ende und er hat Feierabend. Okay. Nach Morgens um 5 Uhr in allgemeinen Krankenhaus. मतलब सुबह के 5 बजे सारे क्रांकन हाउसेस की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की बात हो रही है. फ्लेगर, फेडी सीगलर नाम है. फ्लेगर कौन होता है बताओ? वो क्रांकन फ्लेगर जो उसको बोलते हैं, कंपाउंडर बोल सकते हो आप ना. इस seit 21 Uhr im Dienst, मतलब रात के 9 बजे से वो काम कर रहा है ना. Noch eine Stunde bis die Kollegen von der Frühschicht kommen. मतलब अर्ली मॉर्निंग वाली शिफ्ट में उसका कलीग आने वाला है 1 घंटे में. 1 घंटा है उसके पास, राइट. Die Nacht war wie so oft unruhig. जो रात थी वो अक्सर ऐसी थी जैसे हर रात होती है. unruhig मतलब शांत नहीं थी, अशांत थी. unruhig का मतलब ये हुआ, मतलब पेशेंट होंगे परेशान, वो जगता रहा होगा. बहुत सारी चीजें होती हैं हॉस्पिटल में, राइट. स्वाई पेशेंटन हार्टन प्रॉब्लम है, 2 पेशेंट्स की कुछ दिक्कत थी ज्यादा, तो unruhig होगी ना भाई, शांत थोड़ी चलेगी. कभी आप ड्रिप चढ़ा रहे हो, कभी इंजेक्शन लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, राइट. Eine hatte nach einer Operation plötzlich hohe Fieber. Ein anderer hat mich sicher 10-mal gerufen. एक बंदा जो था उसको ऑपरेशन के बाद उसके अचानक से ज्यादा फीवर, मतलब फीवर हो गया उसके. होए फीवर मतलब टेम्परेचर ज्यादा था उसका बुखार का. और जो दूसरा था उसने मुझे 10 बार कॉल कर दिया, यार आओ यार मुझे दिक्कत हो रही है, मान लो इस तरह से. Und in der Nacht gab es in der Innenstadt einen schweren Fall. और इनस्टाड में डाउनटाउन में एक एक्सीडेंट हो गया रात को. und mehrere Verletzte wurden eingeliefert. और बहुत सारे जो इंजर्ड लोग थे उनको वहां पे लाया गया. also ein ganz normal Nachtdienst. एक नॉर्मल नाइट ड्यूटी हो गई वो उसकी ना, डेली नॉर्मल है. ये चीजें होती है हॉस्पिटल में भाई, सिंपल सी बात है. Freddy beginnt jetzt alles für die Übergabe vorzubereiten. Übergabe क्या होता है? हैंडओवर. वो जो भी मतलब जो टास्क होता है वो हैंडओवर करता है अगले आदमी को, है ना. 7 Uhr ist seine Schicht zu Ende. 7 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी. und hat Feierabend और then he can go to home. तो मतलब जब आदमी की शिफ्ट खत्म हो गई तो वो क्या कहलाता है? Feierabend कहलाता है उसका. You are off to home. ये मतलब हुआ you can go to home. Dann man kann nach Hause fahren. Das ist Feierabend. Clear? समझ में आया नहीं आया? पलाश रीड करो आगे. Nicht weit vom Krankenhaus entfernt liegt die Bäckerei Bücher. 5 Angestellte und der Chef sind seit 2 Uhr bei der Arbeit. In der Backstube ist es sehr warm. Es riecht nach frischem Brot. Alle arbeiten konzentriert und schnell. Pünktlich um 5 Uhr kommt wie jeden Morgen Vera, die Fahrerin, mit einem Auszubildenden. Sie lädt große Körbe mit frischem Brot ins Auto. Der Auszubildende hilft ihr dabei. Ich fahre jetzt zu den größeren Kunden und bringe ihnen ihre Bestellungen. ट्रांसलेट करो. Not far from the hospital is like a bakery. So I think Bukhar उसका नाम है शायद. ये बेकरी का नाम है बुखर.
हाँ, तो lies the Bucher bakery. 5 employees and the boss are from आर 2 in the वर्किंग सिंस 2 o'clock. 2 in the morning. हाँ, हम्म. सर बाक्सटूबर क्या होता है? बाक्सटूब इससे मतलब बाक्सटूब जहां से बेक करते हैं ना वो होता है. ओके, एक तो मिनट रुको, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए. बाक्सटूब, एक मिनट चेक करते हैं. तो एक मिनट रुको, बाक्सटूब मेरे हिसाब से तो वही है. हाँ, बेक हाउस बोल सकते हो, जहां पे बेक करते हो ना वो होता है एरिया. ओके सर, तो baking area is very warm and it हम्म. smells of fresh bread हम्म. and all of them are working with concentration and working at a fast pace. हम्म. Um, punctually like नहीं, मतलब dot मीन्स 5 इसको मतलब अचानक से, सडनली. suddenly at 5 in the morning. Um, Farah comes every morning. The लाइक driver. लाइक एवरी मॉर्निंग शी कम्स ना. हाँ, हम्म. एक सेकंड से आपने भी क्या बोला? हम्म. आपने अभी सेंटेंस के लिए क्या बोला था एक बार? मैंने बोला हर सुबह की तरह वो आती है 5 बजे. हाँ, वही ठीक है. द ड्राइवर सर आउसू बिल्डेंडन का मतलब हाउस इंटर्न बिल्डर है क्या? बोलते हैं उसको, जो इंटर्न होता है ना, इंटर्न. हाँ, इंटर्न ठीक है. हाँ. शी कम्स विद एन इंटर्न देन शी लोड्स द क्योरबेक का रुपए का मतलब. मतलब होता है बास्केट्स. ओके, शी लोड्स द बास्केट बिग. ब्रेड, मतलब ब्रेड बन रहे हैं या कुछ जो उठा के रखते हैं प्लास्टिक की जो होती है, उसको बोलते हैं क्योरब. Okay. She loads the big baskets with the fresh bread in the car, हाँ. or the intern helps her, हाँ. and फिर वो बोलते हैं कि I travel now to the greater clients, like the bigger clients, and I bring them the orders. जो ऑर्डर है वो उनको दे के आएगा. मतलब हाँ, बड़ा जो कस्टमर है, मान लो उसके ब्रेड के ऑर्डर हैं, तो वो बड़ा कस्टमर हुआ, मान लो 1,000 उसको, वो क्या बोलते हैं, बास्केट देनी है उसको, तो वो भर के उसको देके जा रही है, तो है ना, उसके ऑर्डर को. समझ में आया? अब क्या क्या चीज हो रही सिटी में है? कोई ब्रेड ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई अंडे ला रहा है, कोई अखबार बेच रहा है, कोई अखबार पहुंचा रहा है, ट्रक खाली हो रहा है, सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं. कितना सिटी कैसे जाता है पूरा, उसकी बात हो रही है पूरी इसमें ना. श्रुति, रीड करो नेक्स्ट. So श्रुति. Gleisen site beginnt, yes, sir. हम्म. Beginnt der Arbeitstag auch im städtischen Bauhof. Das große Tor wird geöffnet. Ein Reinigungsfahrzeug macht sich auf den Weg, bevor das automatische Tor wieder herunterfällt. Geht ein Obdachloser mit seinem Schlafsack hinein. Keiner hindert ihn daran oder sagt etwas. Er lächelt und sagt, Max fährt immer als erster weg und dann lässt er das Garagentor kurz für mich offen. Ich habe dann bis er wieder zurückkommt, einen, Tro einen trockenen Platz zum Schlafen. Der Max ist ein guter, wo der Obdachlose bisher die Nacht verbracht hat, sagt er nicht. ओके, ट्रांसलेट करो उसको. जब बेकरियां और हॉस्पिटल खुलते हैं उसके सेम टाइम पे सिटी को क्लीन करने वाली गाड़ियां मतलब म्युनिसिपैलिटी वगैरह खुल जाती है, ऐसा कुछ है कैसे? बाउहोफ होता है कंस्ट्रक्शन यार्ड. ओके इससे मतलब सिटी का कंस्ट्रक्शन यार्ड, जहां पे हो सकता है ये व्हीकल्स खड़े होते हो शायद. ये दिख रहा है आपको फोटो में, यस सर, है ना. यस एक सर, बड़ा सा दरवाजा खुलता है, देखो. द्रास 10 ग्रोस टूर विद गियोफनेट, एक बड़ा से दरवाजे को खोला जाता है ना. आइन, यस सर। उसके रीड करो. बाद आइन जो राइजिंग क्लीनिंग फास्ट के मतलब व्हीकल्स, जो सफाई करने वाला जो व्हीकल है ना, वो दिख रहा है ना आपको, वो
Reinigungsfahrzeug बोलेंगे Yes. इसको। तो सफाई के व्हीकल्स वो बाहर जाते हैं मार्क बिफोर जस्ट द आउट करके वो ऑटोमेटिक रास्ते पे जाता है आगे, है ना? यस, जो ऑटोमेटिक गेट है वो बंद होने से पहले हाँ, जिन लोगों के पास घर नहीं है वो अंदर चले जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ओबदाक लोजर है एक, मतलब कोई जैसे भिखारी होता है ना, उसको बोलते हैं जिसके पास छत नहीं है, जो ओपन यस सर, स्काई के नीचे सोता है, उसको बोलते हैं ओबदाक लोजर, है ना? यस सर, हम्म वो अंदर चले जाते हैं ना सर। वो अपने स्लाफ जाक के साथ, उसका जो सामान होता है सोने का, गद्दा होगा छोटा मोटा कुछ, है ना, कंबल होगा, उसके साथ क्या चला जाता है? अंदर चला जाता है वो, है ना, उस यार्ड के अंदर, यानी कि उस बाउहोफ के अंदर। आगे चलो। यस सर, तो उनको कोई नहीं रोकता है, नोबडी ऐसा है ना सर? प्रिवेंट हिम, कोई भी उसको रोकता नहीं है और यस, कोई भी कुछ नहीं कहता है। आगे चलो। वो स्माइल करके बोलता है कि मार्क्स प्रेटी मार्क्स, यस टू वेट मतलब जो उसका मार्क्स, ड्राइवर है ना, उसको व्हीकल को चला के लेगा, उसका यस नाम मार्क्स है, तो मार्क्स सबसे पहले जाता है, और उसके बाद जो दरवाजा है ना, गेट ओपन गेट, छोड़ के वो चला थोड़ा जाता सा मेरे लिए खोल देता है और मुझे अंदर आने देता है, वो ऐसे मतलब हुआ उसका ना। है। यस सर, उसके लिए वो एक मतलब ड्राई अब प्लेस, मतलब जो अब उसके पास 11 बजे तक टाइम है, 11 बजे से पहले नहीं आएगा वो, तब तक वो आराम से सो सकता है वहां पे, है ना? इस अब क्या सर्च कर रहा है वो? एक सूखा हुआ स्थान जहां पे वो आराम से सो सके, हाँ? सोने के लिए एक सूखा स्थान, यहाँ पे आराम से वो अपने गद्दे को बिछाए, कंबल को बिछाए और सो जाए। ओके, रात भर से हो सकता है बारिश होती रही हो, सो नहीं पाया हो बेचारा, क्यों जी? ऐसे ही है। हाँ, जो मार्क्स है वो एक अच्छा तो वो इंसान है। इस, उसके बाद वो जो भिखारी है या जो जिसके पास घर नहीं है वो ये नहीं बोलता है कि उसने पिछली रात कहाँ और कैसे बिताई। मतलब उसने ये नहीं बताया कि उसने रात कहां पे बिताई, यस, सिर्फ वो सोने की बात तो कर रहा है, दरवाजा खुला सोने जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया उसने कि रात कहां बिताई उसने। ये सारा कुछ था, राइट? नीचे आ जाओ, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताओ कौन से रिश्ते से और कौन से फॉल्स हैं। डन? यस, पहला सही है क्या? ट्यूबलिश का मतलब क्या होता है? कॉमन, यूजुअल,
सही है शायद ये तो, यूजुअली था उसके, नॉर्मल बोला था ना उसने ना शायद। बताओ पलाश, रिस्ट से फाल्स है? आई थिंक क्रिस्टस है। मतलब ज्यादा काम नहीं था, एज यूजुअल। ठीक बात है ना। और सेकंड देखो, इन द बेकराई अर्बाइटन जाइट स्वाइवर नाक फुन पेजोनन, 5 ही थे क्या, ये 4 थे? सर 5 थे बट बॉस भी था। बॉस भी तो 6 हो गए ना, फिर तो गलत हो गया, हाँ। फाल्स है। और डी फॉरेन लेट 10 फिश ब्रॉट अलाइन, अलाइन थोड़ी है, मिट हाउस बिल्डिंग के फाल्स, वो साथ कर रही है, इंटर्न फाल्स था। हो गया है ना, अलाइन नहीं आएगा। और इम बाउहोफ दे स्टार्ट वेट दी गान से नाक गया वाइटेड, नहीं, फाल्स। दी गान से नाक गया वाइटेड नहीं, पूरी रात थोड़ी काम किया, नहीं, वो तो सुबह खुला है ना, पूरी रात कहाँ काम किया, नहीं, फाल्स है। और देयर ऑफ द क्लोज कान फ्यूर इन पास्टर इन बाउ हाउस स्लाफन, कुछ घंटे के लिए सो सकता है कि वो, सही बात है, ठीक है, रिस्टेशन। चेक कर लेते हैं, देखो। फर्स्ट स्टेज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स स्टेज है ना। एनी डाउट? No, sir. नीचे आ जाओ। एडजेक्टिव है आल्स नोमेन, तो देखो, देयर ऑफ द क्लोज मान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, केवल देयर ऑफ द क्लोज लिख सकते हैं। दी अनगिस्टेल्ट बेकरिन की जगह क्या लिख सकते हैं, दी अनगिस्टेल्ट, देखना इसमें ना। दी फेलेस्टन मेंशन की जगह क्या लिख सकते हैं, दी फेलेस्टन, देखो उसको देखना। आइन देयर ऑफ द क्लोज की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर आइन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइन ऑफ द क्लोजर, ई आर लगता है इंडेफिनिट आर्टिकल में, आपको याद हो तो, एडजेक्टिव जब यूज करते हैं हम लोग, है ना। डी अनगिस्टेल्ड की जगह आईने, उसमें तो आईने के साथ तो ई लगता है ना। और डी फेलेस्टन की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, तो ओन आर्टिकल में क्या होगा, फेलेस्ट, क्योंकि ओन आर्टिकल हो गया ये, राइट। तो एडजेक्टिव als nomen haben die gleiche endung wie एडजेक्टिव फॉर नोमेन, यानी कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उनके साथ सेम ही एंडिंग लगेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? अब भर के दिखाओ मुझे इनमें, लेजन दी रेगल और एर्गेंसन दी एर्गेंडुंगन, एंडुंग भर के दिखाओ। 5 मिनट है आपके पास, 5 क्या 2-3 मिनट ले लो आराम से, देखते हो कितने अच्छे भर पाते हो आप लोग। हाँ जी बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्स्ट में क्या आएगा,
श्रुति क्या आना चाहिए? बेकांतर होगा सर। ई आ आएगा, बिल्कुल ठीक है। निकाइन बेकांतर। देखो आइन आ रहा है, आइन आ रहा है। आइन कब आता है? नॉमिनेटिव में। और यहां पे निक के लिए आ रहा है, निक मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन के क्या लिखेंगे? ई आर। तो आइन बेकांटर फॉन मियर। बेकांटर मतलब नोन, ए नोन ऑफ मी, है ना। इस्ट, अब देखो जाइन वर्ब आ गई, अनगिस्टेल्ट आ रहा है, तो अनगिस्टेल्ट के साथ क्या लगेगा बताओ? हाँ हाँ हाँ, ई आर आएगा, बिल्कुल ठीक है। अनगिस्टेल्टर, ई आर लगेगा, क्योंकि जाइन वर्ब हो गई। वो सिटी का एम्प्लॉई है, सिटी में काम करता है, सिटी काउंसिल में काम करता हुआ शायद। तो क्या लगेगा? ई आर लगेगा दोस्तों। समझ में किस किस के नहीं आया ये वाला बताओ? फर्स्ट वाला पलाश, गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। सेकंड बताओ, फिर सेकंड आप करोगे ना? सर यूंग एंग्लिशर। Er ist Sozialarbeiter und betreut, क्यों लगाया ई, क्यों लगाया? सर ई आर। ई आर क्यों? तो क्यों आएगा, रीजन बताओ ना। सर उसकी नॉमिनेटिव में तो बात हो रही है ना। हम्म, सोशल है भाई। श्रुति क्या आना चाहिए? सर ईएन आएगा शायद। है ईएन सर। ई एस। एन एन। ई एन तो नहीं आना चाहिए। ई क्यों आएगा तो बता। अरे ऐसा नहीं तो, er ist Sozialarbeiter und betreut, betreut का मतलब पता है आप किसी को? किसी बताओ। बेट्रोइट का मतलब था लुक आफ्टर, एक तरह से ना। तो ये किसके लिए आ रहा है? Er ist Sozialarbeiter und betreut jugendlich, लेकिन नाउन बना दिया हमने यहां पे, तो नाउन के लिए तो फिर ई आना चाहिए, क्योंकि युगेनलिश कुछ नहीं होता, क्योंकि नाउन बना रहे हैं ना अपन इसको, तो युगेनलिश तो कुछ होता ही नहीं है। तो नाउन जब बनाएंगे तो युगेनलिश एक बनाना लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि देयर युगेनलिश होता है। पलाश, ई आएगा इसमें, क्योंकि नाउन बना रहे हैं अपन इसको, राइट। नाउन किसके हिसाब से बनेगा बताओ? क्योंकि युगेनलिश आ रहा है, युगेनलिश अकेला नहीं हो सकता। वो अगर एडजेक्टिव होता तो मैं इसको जे को छोटा लिखता, यहां पे ये नाउन है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा? देयर युगेनलिश बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एर की बात हो रही है, तो इसलिए क्या लगेगा? ई लगेगा इसमें, इसको नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन कैसे बनेगा? ई लगा के। तो जैसे ई लगाओगे तो ये नाउन बन जाएगा, तो युगेनलिश हो जाएगा। क्लियर? ई लगा दो भाई, क्योंकि अगर एडजेक्टिव लिखता तो मैं युगेनलिश लिखता, उसमें जे छोटा आता। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव आज नोमेन, एडजेक्टिव को हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा दोस्तों? एक बार कनेक्शन चला गया था, आप ये वाला पार्ट वापस समझा सकते हो क्या? मैं कह रहा हूं यहाँ पे ई लगेगा,
क्योंकि यहां पे नाउन बना रहे हैं अपन, तो नाउन के साथ युगेनलिशे ही होता है, देयर युगेनलिशे। अगर वन की सेंस में लिखते तो मैं आइन युगेनलिशन लिखता, जैसा वहां पे हो रखा है देखो, देयर ऑफ द क्लोजर या आइन ऑफ द क्लोजर। तो यहां पे युगेनलिशे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी बात हो रही है एयर की। गॉट इट? थर्ड में कोशिश करो क्या आएगा, ये तो आसान है। ईएन लगेगा क्योंकि डाटिव हो गया, देखो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फेरवांटन, फेरवांटन ईएन लग जाएगा भाई, राइट। श्रुति, पलाश, क्या नाम है, अपना प्रमोद भैया, यस सर, इसमें तो ईएन लगेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि कोई मिटा गया, दिक्कत नहीं। राइट। और 4 नंबर में क्या आएगा बताओ? ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, मिट युगेनलिशन हो जाएगा ना, क्योंकि डाटिव हो गया। तो उसमें एंडिंग सेम लगता है जैसे एडजेक्टिव में हम लगाते हैं ना, वही यही कहना चाह रहा है। जब एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो एडजेक्टिव एंडिंग ऐसे ही लगता है जैसे हम लोग लगाते आते हैं, यही कहना चाह रहा है ना। तो डन, यहां तक हो गया अपना। अब कितना बचा है, तक किया अपन ने आज। लेबेंसवेर्टेस्टैटर कल हो जाएगा क्या पूरा? नहीं होगा, बड़ा है चैप्टर ना। माइनस स्टार्ट, यहां तक है, 2 दिन में हो गए। Lebenswerte was macht eine Stadt lebenswert? Sammeln sie im Gruppen, welche 5 Punkten werden am häufigsten genannt? 20 मिनट है अपने पास, कल करेंगे इसको, बताइए। इफ इट इज ओके फॉर यू वी कैन डू इट टुमारो। हाँ, ये पेज कल कर लेंगे अपन, ये वाला कर लेंगे। इसमें और क्या आएगा, देखो ग्रामर आई है क्या? हाँ देखो, रिलेटिव जास्त आए हैं आपके, कल ये रिलेटिव जास्त पढ़ेंगे, वास और वो कब यूज कर सकते हो, तो ये कल ग्रामर का टॉपिक भी आ जाएगा इसमें। और वो आपकी तो ये देखते हैं, तो कल परसों पूरा हो जाएगा चैप्टर ये आपका, है ना, 7th। ठीक है, कल करें आगे। सर अभी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अभी कुछ कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। ओके। तो देखो, लेबेंसवेट स्टैटर, लेबेंसवेट का मतलब पता है आप किसी को? वर्थी, है ना, वर्थफुल सिटीज या वर्थ लिविंग सिटीज बोल सकते हो आप ना। तो वास मार्क्ड eine स्टार्ट लेबेंसवेट मतलब एक सिटी वर्थफुल क्या करता है, आपकी लाइफ को क्या करता है, वर्थफुल बनाता है वो। आप वहां पे कोजी फील करते हो, अगर अच्छा फील नहीं करो तो रहना पसंद नहीं करोगे आप वहां पे ना, यही ना। तो sammeln den Gruppen welche 5 Punkte werden am häufigsten genannt? ऐसे कौन 5 पॉइंट हैं जो अक्सर मेंशन किए जाते हैं, बताओ। कोई अच्छा सिटी रहने लायक कब होता है, कोशिश करो 5 पॉइंट बताओ मुझे उस तरह के। तो कैसे बोलेंगे जर्मन में बेटा? बताइए, श्रुति कोशिश करो। सर ऐसे ही बता सकती हूँ। लेबेंस क्वालिटेट, नॉर्मल देखो लेबेंस क्वालिटेट, लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना यस सर, चाहिए, es gibt सेफ keine होना चाहिए सर आगे। Verschmutzung, या दी नाटूर नेचर होनी चाहिए, पार्किंग प्लेसेस होने चाहिए, पार्क प्लेस, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज होने चाहिए, काम हो, रोजगार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजें आएंगी भाई। एक सिटी रहने लायक तब बनता है। इसके अलावा नाइट लाइफ अच्छी होनी चाहिए,
अगर क्यों, ये भी जरूरी पार्ट है। रेस्टोरेंट अच्छे होने चाहिए खाने पीने का, है ना, म्यूजियम्स होने चाहिए, टूरिस्टिक प्लेसेस होने चाहिए, तब सिटी आपका रहने लायक बनेगा भाई, है, अच्छे बाजार होने चाहिए, अच्छे शॉपिंग सेंटर होने चाहिए। बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? चलो, lesen Yes, Sie sir. den Text. Vergleichen Sie mit Ihrer Sammlung aus 8a. जो 8a में हमने जो कलेक्ट किए पॉइंट्स, वैसे पुंक्टे haben Sie auch genannt. तो ऐसे कौन से पॉइंट है जिनको और आप मेंशन करना चाहेंगे? ठीक है, was macht Städte attractive cities, मतलब सिटीज एट्रैक्टिव क्या करते हैं? तो रीड करते थे एक बार, हमारी ऋतिक रोशन रीड कर, ये ले ले माइक। Was macht Städte attractive? Wie gut man in einer Stadt lebt, hängt von vielen Faktoren ab. Wie gut man in einer Stadt lebt, how one lives in a city, hängt von vielen Faktoren, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना? Je nach Lebenssituation Lebenssituation, ist für jeden Menschen etwas anderes wichtig. मैं कह रहा ये ना Lebenssituation मतलब जो लाइफ की जो सिचुएशन है, रहने की सिचुएशन है, इस für jeden Menschen, हर आदमी के लिए वो थोड़ी सी डिफरेंटली इंपॉर्टेंट होती है, ये कहना चाह रहा है ना? Das internationale Unternehmen किसी hat Städte weltweit ausgewählt und ihre Lebensqualität untersucht. मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी है किसी मानो या किसी मानो, उसने करीब 40 सिटीज को वर्ल्ड वाइड में चूज किया और उसकी लाइफ क्वालिटी को एग्जामिन किया, राइट? Dabei stand die Work-Life-Balance im Vordergrund. Vordergrund, क्या वर्ड है? Vordergrund. Vordergrund. Vordergrund क्या होता है? फोरग्राउंड, एक तरह से बोल सकते हो, प्रायोरिटी बोल सकते हो चाहो तो, है ना? ओके, तो साथ में प्रायोरिटी किसकी थी? वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि लाइफ में आप काम रह रहे हो और काम भी कर रहे हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है आपका? ऐसा तो नहीं काम में डूबे हो, परिवार के लिए टाइम नहीं है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट थी, है ना? आगे चलो। 20 Aspekte zu 3 thematischen Gruppen würden von Fachleuten bewertet. मतलब 20 एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट क्या होते हैं? कल भी बात हुई थी, क्या बोलते हैं एस्पेक्ट को भाई मित्रों? So aspects like पहलू आपने बोला था हिंदी में। यस, है ना? तो zu drei thematischen Gruppen wurden von Fachleuten bewertet, यानी कि 20 एक्सपेक्ट को 3 थ्योरेटिकल ग्रुप में जो एक्सपर्ट थे उनके द्वारा एबुलेट किया गया, बेवेटेड किया गया, है ना? जैसे इंटेंसिटी देयर बाइट, कि काम की इंटेंसिटी क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन देयर गेजेलशाफ्ट, जो इंस्टीट्यूट्स हैं सोसाइटी के, उनकी बात हुई, जैसे उसमें हॉस्पिटल आ गए, आपके स्कूल्स आ गए, सब कुछ आ गया, है ना? इस तरह की यूनिवर्सिटीज आ गई। और दी लेवेंस क्वालिटेट देयर स्टडी, और सिटी की लाइफ क्वालिटी क्या है, पोल्यूशन है नहीं है, जैम कैसा लगता है, ट्रैफिक जाम कितना लगता है, वो सारी चीजें होगी, है ना? Intensität der Arbeit, Institutionen in der Gesellschaft und die Lebensqualität der Stadt. रुक जाओ यहाँ पे, वेट पलाश रीड करो आगे फ्यूल से। Für die Intensität der Arbeit würden nicht nur Daten zur Arbeitszeit gesammelt, wie viele Stunden Arbeitszeit sind pro Woche vorgeschrieben, sondern auch weitere Aspekte. Wann beginnt im Durchschnitt der Arbeitstag? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt? Wie lange dauert der Weg zur Arbeit?
Gesetze der jeweiligen Staaten spielen da natürlich eine wichtige Rolle. Sie legen fest, wie viel Anspruch man auf Urlaub oder Elternzeit hat. ट्रांसलेट करो। For the intensity of the work, हम्म। would not the dates of the मतलब work, डेटा, यहाँ पे डेटा है, इसका मतलब डाटा। okay, sir. Would the data of the work time was collected? मतलब फिर वो क्वेश्चन, एक सेकंड, we feel is मतलब turning ये now. कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स हाँ, how many hours work वर्किंग time पर वीक। like per week? तो vorgeschrieben का मतलब फोर गिशिवन का मतलब क्या होना चाहिए, देखो। कंपलसरी बोल सकते हो, मतलब कितने so like पर वीक वर्किंग आवर्स कितने कंपलसरी हैं, ये आएगा मतलब ना। okay. So the data was collected for the work time. How many hours of work are assigned या mandatory per week? कंपलसरी ना। हाँ, especially also some other broader aspects. When does the workday begin? So Durshnet city का नाम है क्या? नहीं, दुष्ट होता है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली के लिए आता है। Okay. When does the workday begin approximately? How high is the so Arbeitslosigkeit का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ना। Okay, how high is the unemployment in the city? How long does the way to the work last? और रूल्स, ये जैसे क्या होते हैं रूल्स, सिटी में रूल्स, पॉल्यूशन के रूल, ड्राइविंग के रूल्स, है ना, ये सारे ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। और सो ये वायलेशन का मतलब? किसका? ये वायलेशन। ये वाइलीगन होगा। ओके, ये वायलीगन। मतलब ये वाइलिश होता है वैसे तो ना, सही वर्ड तो ये वाइलिश है, मतलब रेस्पेक्टिव, एक्चुअल, उसके लिए आता है। सर तो लाइक वैसे ये वायलिश है बट इसके अंदर ये वायलीगन बोलेंगे ना? ये वाइलीगन बोला पड़ेगा यहाँ पे ना, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, ये स्टार्टन। ठीक है। जो तो रेस्पेक्टिव द जो सिटीज है रूल्स, ना, जो हाँ, रेस्पेक्टिव रूल्स इन द सिटी के जो रूल्स रिस्पेक्टिव हैं वो भी सिटीज। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, ये मतलब हुआ। हम्म। और सर आंसप्रूफ का मतलब क्या होता है? अंशप्रूफ होता है आपका, क्या बोलेंगे अंशप्रूफ को, क्लेम बोल सकते हो, क्लेम, इंटरेस्ट, है ना। um so basically how much like lies the fest, how much the man has time. नहीं, एक second, we feel how much the man has an interest or claim for like vacations or time with his or her parents. यस, राइट। श्रुति आगे रीड करो। Auch für die Institutionen der Gesellschaft sind politische Entscheidungen und die gesetzliche Situationen wichtig. Dabei würde berücksichtigt, wie viel der Staat für Bildung, Gesundheit und so, सर सोशियाल पढ़ेंगे या जोशियाल पढ़ेंगे सर? सर हाँ जी, कहाँ पे अटक गए? जोशियाल, सेकंड जोशियाल Sicherheit ओके ausgibt. सर, soziale Sicherheit ausgibt oder welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung
Betrayung Betreuung. es gibt. Betreuung es gibt. Andere Fragen dazu waren, ob es gute, kostenlose Schulen und Hochschulen gibt oder ob alle Personen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Nicht vergessen wurden auch gesellschaftliche Werte. Wie sieht es mit der Gendergerechtigkeit aus? Wie ist die rechtliche und soziale Situation für Diversität? Diversität. ओके, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ओके सर। हम्म। सिटी में जो इंस्टीट्यूट सोसाइटी है के और इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं पता है आपको? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, बैंक, सब कुछ ये सारे आपके यस सोसाइटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, बोलते हैं इनको ना। सर। हम्म। पॉलिटिकल डिसीजंस है, Entscheidungen ये मतलब पॉलिटिकल है ना डिसीजंस होते हैं सारे ना। यस सर। हम्म। Political decisions or legal situations are also important. हम्म। उसके बाद क्या है सर वो दबाई उड़ो बेरुक्सिस्टिस का मतलब समझ नहीं आ रहा। बेरुक्जिस्टिस Yes, sir. उसका मतलब क्या होगा सर? मतलब बेरुक्जिस्टिस का मतलब होता है इसके साथ ऐसा भी कंसीडर किया गया कि wie ओके viel सर। der Staat für Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit ausgibt, कि कोई स्टेट पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए और सोशल एस्पेक्ट के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए, है ना, सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है सिटीजन के ऊपर। क्योंकि देखो जब स्टेट बजट बनाता है तो डिसाइड करता है कि भाई हम इतना पैसा हेल्थ पे खर्च करेंगे, हॉस्पिटल्स पे खर्च करेंगे, ये सिक्योरिटी पे रहेगा, ये पुलिस पे रहेगा, ये सारी चीजें रहती है ना। वो सारी चीजें अभी तो लाइफ क्वालिटी इंसान सिटी की अच्छी बनती है, सफाई पे इतना पैसा खर्च होगा ना, पुलिस की भर्ती इतनी होगी, सब कुछ डिपेंड करता है। सिक्योरिटी कब आएगी, पुलिस अच्छी काम करेगी तब, है ना। आगे चलो। यस सर। और चाइल्ड केयर के कितने ऑप्शंस अवेलेबल है उस पे भी डिपेंड करता चाइल्ड है। केयर की क्या पॉसिबिलिटीज है ना। आगे यस सर। चलो। अंदर फ्रागा मतलब अदर क्वेश्चंस आर लाइक स्कूल का कितना खर्चा आएगा? फ्री फ्री वाले स्कूल हैं या नहीं है, कितने अच्छे हैं जो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं आपको। यस सर। हॉक है कैसे और जो बिना। यूनिवर्सिटी हाँ आगे चलो। मतलब सभी लोगों सारे को सब जो लोगों को हेल्थ हेल्थ सिस्टम केयर का की एक्सेस है या नहीं है ना, ये मतलब हुआ। ob यस सर। alle Personen Zugang zum Gesundheitssystem haben, कि जो सभी लोगों को हेल्थ सिस्टम का एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। स्कीम चल रही है, मान लो आयुष्मान भारत चल रही है, इसका एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा लोगों को, मिल रहा है। जैसे पहले अपने स्कीम आई थी, कौन सी थी वो, 25 लाख का इसमें बेनिफिट था कांग्रेस की गवर्नमेंट में ना। तो इस तरह की स्कीम की बात है, वो अलग चीज है, वो चुनाव के टाइम पे बांटे थे। आगे चलो। उसके अलावा सोशल वैल्यूज को एग्जामिन किया जाता है, जैसे जेंडर इक्वालिटी कैसे हैंडल की जाती है मतलब उसके आधार पे। जेंडर गेरेस्टिस्काइड का मतलब है इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, महिला और पुरुष में भेदभाव तो नहीं है, ये वाली बात हो रही है ना। यस। और सोशल और लीगल सिचुएशन क्या है डाइवर्सिटी रिगार्डिंग कैसी, द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की बात हो रही है ना। ओके, मैं फटाफट 3 लाइन पढ़ देता हूं जिससे ये पैराग्राफ खत्म हो पाए ना। Die letzte thematische Gruppe war schließlich die eigentliche Lebensqualität der Stadt। मतलब लास्ट जो थेमा था ग्रुप का वो क्या था आपका, फाइनली द लेबेंस क्वालिटी, सिटी की लेबेंस क्वालिटी कैसी है। द ging es auch um Themen wie Sicherheit und das Angebot im öffentlichen Verkehr, यानी कि सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है वहां पे, उसकी बात हुई। अंदर फ्रागन वारन वी फील फ्राई फ्लैशन, यानी कि पार्किंग प्लेसेस है या नहीं है वहां पे। öffentliche Plätze जो भी ग्रीन फ्लैशन पार्क्स, यानी कि ग्रीन एरिया कितना है, पार्क कितने हैं, ये भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का पार्ट है भाई।
है ना? घर में बंद तो नहीं रह सकते ना आप, कि सिटी में क्या स्थिति है, फ्री प्लेसेस, फ्री एरिया कितना है, वी इज द क्वालिटी देयर लुफ्ट, हवा की क्वालिटी कैसी है, उसमें पॉल्यूशन तो नहीं है, वी गुड जिन दी möglichkeit इन फ्यू फ्राई साइट, मतलब फ्री टाइम के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, फिटनेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है ना? Diese Punkte betreffen ausschließlich die jeweils Stadt, मतलब ऑब्वियसली ये सिटी के से मिलने चाहिए। betreffen का मतलब क्या होता है पता है आपको? कंसर्न, टू हिट, मतलब ये हिट करने चाहिए, ये पॉइंट आने चाहिए सारे, है ना? तो unter der Cell Labels wer testen Städten befinden sich auch 4 Städte aus Dach, दाग के 4 सिटी उस लिस्ट में आए आपके इसके निकल के, जो रहने लायक है ना? तो ये था टेक्स्ट, ये हमने कर लिया अच्छे से, कल इससे आगे करते हैं, राइट? गुड, चलिए, auf Wiedersehen, ciao, bye bye, bis morgen. Auf Wiedersehen, sir.